Sorry for the interruption. So we were discussing electronic grade silicon, where SA8Cl3 then reacts with hydrogen gas to form silicon, and this silicon that is being produced is known as electronic grade silicon. And pure EGS has the impurity concentrations in the parts per billion range, that is in extremely pure form of um, silicon. This silicon that is being produced in the very first step is then used in an apparatus, or the method that is known as the Czochralski technique, and the apparatus used for this purpose is known as a crystal puller. As the name indicate, it should have some basic arrangement that can pull the crystal out of the melt. The basic it has got three important components. One is the furnace, that has got that includes the fused silicon crucible, that is SiO2 crucible, and it has got a graphite susceptor, and it has got and it has and it has got graphite susceptor. It has got radio frequency coil for the heating purpose. It has got a power supply for that also, and it has got a rotation mechanism, that is the clockwise rotation mechanism. uh, and the second part is composed of a crystal pulling mechanism, which consists of, we can see over here that it consists of, includes two basically parts. One is the seed holder, and other is the counterclockwise rotation mechanism. Basically, seed has got the same concept over here uh, एज दैट ऑफ आर प्लांट्स. जिस तरह पौधों के केस में हम ज़मीन के अंदर एक बीज डुबाते हैं या एक सीड को इम्प्लांट करते हैं, उसके केस में उस सीड में से एक पूरा पौधा ग्रो करता है. इसी तरह से जब हम इसी तरह से ये जो चक्रॉल्स की टेक्निक है, इसमें भी आप उस सीड की या उस पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन की या क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जो कि हमने पहले स्टेप में पिछले स्टेप में प्रोड्यूस किया, उसको आप एक बीज के तौर पे इस्तेमाल करते हो या एक सीड के तौर पे इस्तेमाल करते हो, और उस सीड की मदद से आप अपना पूरा क्रिस्टल का इनगॉट जो है, या जो आपका पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, या जो आपका पूरा इनगॉट है, वो आप हासिल कर लेते हो. जो क्रिस्टल पुलिंग मैकेनिज्म है, डेट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स. वन इज़ द काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन मैकेनिज्म होता है, और इसमें एक सीड होल्डर होता है. Third is the ambient control that controls the atmosphere. It has got the gas source, that is organ is being used. It is an inert gas, a flow control system, and exhaust system. In addition to all of this, there's a microprocessor based control system that controls the temperature, crystal pull rate, rotation speed, because pull rate and rotation speed are extremely important. The crystal diameter, and various sensors and various feedback loops are also present, reducing but overall, the basic mechanism is being controlled by this portion that is being shown in the figure. In this case, what we do, that we put the electronic grade silicon that we produced in the very first step in the crucible, fused silicon crucible, SiO2 crucible. The furnace is heated above the melting temperature of silicon. The melting point of silicon is exactly is around about 1400 degrees centigrade. So it is heated above the melting temperature of silicon. uh, a suitably orient In the next step, this suitably oriented seed crystal, that is, for example, if we want to grow up a crystal ingot, yeah, of a crystal of one dimensions, dimensions,
In that case we have to use the seed crystal of 111 dimension. And so the 111, 100, 110, whatever the requirement is. In this case, the suitably the seed crystal of suitable orientation crystallographic structure is suspended over the crucible in the seed holder. As we can see in the very first picture, that uh, that the seed holder in the very first picture, that the seed holder is placed in the a suitably orient is suspended over the crucible in a seed holder. The seed is then inserted into the melt is basically composed of pure electronic grade silicon that is being produced in the previous step and is at a very high temperature. Part of the seed, when we dip the seed or the solid electronic, uh, when we dip the seed, that is of extremely pure quality and of particular orientation crystallographic structure. We put it in this we put it in the melt that is composed of electronic grade silicon. In that case, uh, some of it part of it melts, but the tip of the remaining crystal still touches the liquid phase. In after that it is true, slowly withdrawn, इसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालते हैं. ठीक है. जो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस है वहाँ पे एक फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो कि एक दैट विल रिजल्ट्स इन अ लार्ज सिंगल क्रिस्टल. In this case, the pull rate is extremely important because mostly a pull rate of few millimeter per minute is being utilized and is being utilized. The thing is, the question arises that we are already using we want to grow a single crystal silicon, and we are already placing it in a crucible that is also made up of silicon dioxide. So at high temperature, it also produces some of the some effect because single crystal from the silicon consist of undoubtedly it's a fact that we produce single crystal silicon in a few silica crucible, and when the silicon is hot, and this silicon or silica also reacts with the silicon crucible and releases some oxygen into the melt. कुछ ऑक्सीजन जो है ये रिलीज कर देता है मेल्ट में. ठीक है. सो जो हमारे पास चिक्रॉल्स की टेक्निक से सिलिकॉन जो प्रोड्यूस होता है डेट हैज़ गॉट अप्रॉक्सीमेटली 10⁻18 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब्स ऑक्सीजन के मौजूद होते हैं. ठीक है. ऑक्सीजन के मौजूद होते हैं. लेकिन जैसे जैसे मेल्ट कर जैसे जैसे हमारा क्रिस्टल ग्रो होता जाता है, हमारे पास मेल्ट जो है या जो लिक्विड है जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन था वो कम होता जाता है. ठीक है. सो जब वो कम होता जाएगा तो जो हमारे जो वॉल्स ऑफ द कंटेनर हैं या जो क्रूसिबल हैं डेट आर एबल, उनका जो कांटेक्ट है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन वो कम हो जाएगा. तो उसके साथ ही हमारे पास जो ऑक्सीजन रिलीजिंग कैपेबिलिटी है उसकी इनटू द सिलिकॉन डेट विल आल्सो रिड्यूस. ठीक है. ठीक है. और रिलीज वो भी कम हो जाएगी. ठीक है. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो ऑक्सीजन रिलीज़ होता है इनटू द सिलिकॉन, ये एक तरह से एडवांटेजियस भी है बिकॉज ऑक्सीजन एक थर्मल डोनर के तौर पे एक्ट करता है इन द सिलिकॉन ऑक्साइड. ठीक है. एक ये फैक्टर है. सेकेंडली ये कि ये इट एक्सट्रीमली इंक्रीजेज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सिलिकॉन डेट इट रियली मेक्स इट डिफिकल्ट टू ब्रेक इट डाउन. ठीक है. और ये जो ऑक्सीजन प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं ये बेसिकली एज अ गेटरिंग साइट्स या ट्रैपिंग साइट्स भी एक्ट करते हैं फॉर unintentional impurities that are present in the, because electronic grade silicon is not even 100% pure silicon. ठीक है.
if it's 99, even if it's 99.9% pure silicon, there are some impurities still present, that can include calcium, that can include sodium, or any other impurities. Okay, these basically oxygen sites that are present within the silicon crystal, they basically trap up these impurities also. um, and these oxygen, this oxygen that is being present in the and oxygen that is being present in the silicon, it can also be removed by the process of quenching, that is taking it up to the high temperature silicon, and then bringing it to a very low temperature extremely drastically, so it can also be reduced. And the third factor is that such type of oxygen is trapped into is present in the bulk of silicon wafer. It is not present on the surface of the silicon. So the devices that we manufacture are fabricated only on the surface of the wafer. So these factors extremely makes it capable ke we can deal with the oxygen that is present, a few oxygen atoms that are being present within the silicon crystal. Silicon crystal. The advantages that it also acts as a thermal donor. It increases the mechanical strength of silicon, and it also acts as a Gattring or the Gattring sites or interstitial sites for Gattring. It acts as a trapping sites or the Gattring sites for unintentional impurities also. Now the thing is कि uh, we know कि we have when we have to make MOS FET, or we take up a doped silicon substrate, and we dope it with the other type to make up a PN junction. ठीक है. So the thing is कि how to अभी तक जो हमने पढ़ा है, जो हमने डिस्कस किया है, that is related to how to synthesize pure silicon and god, whereas it is possible to dope the silicon during its synthesis process, that in this case जितनी भी amount हमें dopant की चाहिए होती है, it is added to the melt to give the desired doping concentration. ठीक है. In the melt, जिस तरह boron and phosphorus, we know कि boron is doped in silicon for p-type impurities, and phosphorus is doped in for n-type impurities. For n-type impurities. Um, so now the crystal is pulled from the melt. The doping concentration एज द क्रिस्टल, जैसे ही हम अब उस केस में होता है ये कि आप जो आपके डोपेंट आपका मटेरियल होता है, आप उसको मेल्ट में ही ऐड कर देते हो. ठीक है. जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. बट द फैक्ट इज़ कि द डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन यू हैव एडेड इन द मेल्ट एंड द डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन यू विल गेट इन योर फाइनल क्रिस्टल इन गॉड. ये जो आपका सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन आपके पास अचीव होगा, उसके अंदर दोनों के अंदर देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेल्ट. ठीक है. ऑफ द मेल्ट एट द इंटरफेस. ठीक है. अब जो इंटरफेस बन रहा है ना, उसके ऊपर जो है वो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी. ठीक है. और the ratio of the two concentrations, that is the concentration of the dopants in concentration of the dopant in the solid and the concentration of the dopant in the liquid, these two are different, and their ratio is defined as the equilibrium segregation coefficient. That how the dopant is, how effective is how much the dopant is being incorporated. It basically represents that how much the dopant is being incorporated into the your solid NCOT as compared to what was you put up in the
liquid crystal. Uh, and here are some of the values. We can see that K naught values are less than 1 except for oxygen. Are less than 1 except for oxygen because it acts as the thermal it acts as a thermal donor, so it has got some different concentrations. And because of the fact that the ingot that we are preparing also react with the environmental conditions to produce oxygen, so because of which there's a probability that in the silicon, under certain conditions, the concentration of dopant in the solid can be larger as compared to, but otherwise the dopant concentration in the liquid is much higher as compared to that of in the solid. And which means that during growth the dopants are rejected into the metal. ठीक है, कि मेल्ट में जो आपका लिक्विड है, ये जो मेल्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन जो अपने क्रूसिबल में डाला है, डोपेंट्स ज़्यादातर दे वांट टू स्टे ओवर देयर. उसका नतीजा क्या होता है कि जो मेल्ट होता है उसके पास डोपेंट की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज़ होती जाती है. जैसे जैसे आप अपना हमारा क्रिस्टल ग्रो होता जाता है, उसमें से कुछ जो क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 100 एटम्स, यू हैव पुट ऑफ 100 एटम्स आपने अपने बोरॉन के या फॉस्फोरस के आपने अपने मेल्ट में डाले हैं, ठीक है. और जैसे जैसे आप अपना क्रिस्टल ग्रो कर रहे हो, द प्रोबेबिलिटी इज़ दैट कि ओनली 20% ऑफ द एटम्स आपके इन गॉट में जाएंगे. रेस्ट ऑफ द 80% will stay back into the liquid. Let's consider that we have a melt with an initial weight m naught, और जिसकी डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन है सी नॉट इनिशियली, ठीक है. और डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी वेट ऑफ द डोपेंट पर 1 ग्राम ऑफ द मेटल, ठीक है. सो एट अ गिवन पॉइंट ऑफ ग्रोथ, अब फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारे पास वेट ऑफ द मेल्ट था एम नॉट, ठीक है. हमने कुछ सर्टेन क्रिस्टल ग्रो कर लिया ऑफ द वेट एम, लेट्स से, एंड द अमाउंट ऑफ द डोपेंट रिमेनिंग इन द मेल्ट बाय वेट वाज एस, ठीक है. इनिशियली हमारे पास जो था, हमारे पास जो मेल्ट का वेट था या जो लिक्विड था उसका वेट था एम नॉट, ठीक है. और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन थी सी नॉट, ठीक है. अब हमने जब प्रोसेस हमारा स्टार्ट हुआ आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, लेट्स से टी, जो क्रिस्टल का वेट था, जो हमारा क्रिस्टल था, ठीक है, उसका वेट हो गया एम, कि हमारा मेल्ट से हमने क्रिस्टल ग्रो कर लिया ऑफ द वेट एम. एंड जो डोपेंट था, अब कुछ डोपेंट जो आ गया उसमें आपके क्रिस्टल में, और जो कुछ डोपेंट है जो पीछे रह गया आपके मेल्ट में, उसको हम रिप्रेजेंट करें एस से. ओके. अब जो डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास रह गई है मेल्ट में, वो है एस. नाउ अब जब एक वेट आपके पास ग्रो हो गया है आपके इसके इन क्रिस्टल का, ठीक है. सो हमारे पास जो डिक्रीज डोपिंग कॉरस्पॉन्डिंग रिडक्शन इन द डोपेंट will be equal to CS dm, where dm is the increment in the amount of the weight with the amount of the weight, and CS is the doping concentration in the crystal, ठीक है. CS हमने अभी पीछे देखा था कि इक्विलिब्रियम सेग्रीगेशन कोफिशिएंट से किस तरह से रिलेट हुआ हुआ था, ठीक है. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब नेगेटिव साइन इस वजह से है कि हमारे पास जो डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन इन द मेल्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज कर रही है, ठीक है. अब ये दैट्स अ सेपरेट फैक्टर कि क्या वो उसी रेशो से डिक्रीज कर रही है कि जी जिस रेशो से वी वांटेड, या जितने हमने डाले थे उसमें से हाफ उधर चल गया, हाफ उधर चल गया, बट इज़ अ डिक्रीज, ठीक है. वी एग्री टू दैट कि हाँ जी ये डिक्रीज हो जाता है फैक्टर, ठीक है. सो अब जो
इनिशियली हमारे पास वेट था मेल्ट का एम एम नॉट, ठीक है। उसमें से क्रिस्टल के पास वेट चला गया एम, तो जो मेल्ट जो पीछे रह गया उसका वेट है एम नॉट माइनस एम, ठीक है। सो द रिमेनिंग वेट ऑफ द मेल्ट इज एम नॉट माइनस एम, एंड द सी एल इज गिवन बाय सॉरी बच्चों यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। So now, and the doping concentration in the liquid by weight, Cl, it's given by the doping concentration in the liquid by weight is given by S, that was the initial, by the remaining weight in the melt, amount of the dopant remaining in the melt divided by the remaining weight of the melt. So जो लिक्विड में जो डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन इन द लिक्विड सी एल इक्वेशन नंबर 2 में जो दिखाई गई है, ठीक है, वो अब हमें वो अब दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक वो अमाउंट जो कि वेट की रह गई है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और सेकेंडली इस चीज़ पे कि कितनी उसके अंदर कितने उसके अंदर amount of the dopant रह गई है in the melt, that is represented by S. So अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। हमारे पास CS भी है और हमारे पास CL की कॉन्सेंट CL भी है, ठीक है। हमने पीछे देखा था कि इक्विलिब्रियम सेग्रीगेशन कोफिशिएंट था K0 इज इक्वल टू CS बाय CL, ठीक है। हम इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर देंगे और इसको हम पुट कर देंगे अपनी इक्विलिब्रियम सेग्रीगेशन कोफिशिएंट की उसमें इक्वेशन में, ठीक है। सो वी विल कम अप विद दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, अभी इक्वेशन नंबर 3 इट्स फ्रॉम it's over a very small change. We have used the differential form, so it represents a very small change. We will evaluate it over the entire. So let's say the initial weight of the dopant is C0 M0. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करने के बाद व्हाट वी विल बी डूइंग दे कि हम इसको इक्वेशन 2 के साथ कंबाइन कर देंगे, ठीक है। सो इक्वेशन 2 के साथ कंबाइन कर देंगे, सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इधर भी नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली बेसिकली हम अब क्या कह रहे थे, बेसिकली हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड में चेंज करने से बेसिकली हमारे पास जो उसमें है डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन वो कैसे चेंज होगी, क्रिस्टल में कैसे चेंज होगी। इन दैट केस हमने क्या देखा है कि हमने एक स्टार्टिंग इनिशियल वेट ऑफ द डोपेंट लिया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखी, ठीक है। हमने ये कहा कि जी इतना हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, इतना हमने एक क्रिस्टल ग्रो कर लिया और हमने इसका वेट निकाल लिया है बाहर, उसके पीछे हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन रह गई है, ठीक है। उसको हमने अपनी इक्विलिब्रियम सेग्रीगेशन कोफिशिएंट के कॉन्सेप्ट के साथ उसको कंबाइन करके वी कम अप विद द फाइनल इक्वेशन, दैट इज़ द इक्वेशन जो सबसे नीचे लिखी हुई है। अब इस केस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो आपकी
dopant concentration in the growing single crystal, that depends upon 2 to 3 things. One is the equilibrium segregation coefficient, that depends upon the initial weight of that depends upon the CS by CL. ठीक है, एक हमारे पास है C नॉट, डैट इज़ द इनिशियल डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, कि फाइनल डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करती है नंबर वन इनिशियल डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे. सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन the segregation coefficient that we defined as CS by CL. Thirdly, it depends upon M by M naught, that is the fractional change in the initial weight. M by M naught, that M क्या था हमारे पास कि क्रिस्टल का वेट जितना ग्रो हो गया है और इनिशियली कितना वेट था. बेसिकली इट्स द रेशो कि जितना वेट हमने ग्रो कर लिया और जितना वेट हमारे पास इनिशियली था. सो बेसिकली हमारे पास जो चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं हमने, जो बेसिकली जो चीज़ें हमारे पास हैं वो जो डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आया है, ठीक है, दैट इज़ क्वाइट. सो समिंग अप दिस स्लाइड होल, बेसिकली जब हम डोपिंग करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, और या हमारे अपने जो क्रिस्टल इनगॉट जिसको हमने एज अ सबस्ट्रेट मटेरियल यूज़ करना है, इन दैट केस क्या होता है हमारे पास कि हमारे पास जो डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन हमने मेल्ट में ऐड किया है वो, और डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन जो हमने जो हमारे पास फाइनल हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आया है, दैट आर क्वाइट डिफरेंट. ठीक है, अब होता ये है कि वो जो आपका जो डोपेंट है दैट इज़ बेसिकली बीइंग रिजेक्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम इनटू द मेल्ट, जिसकी वजह से हमारे पास मेल्ट के अंदर जो हमारी डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है. ठीक है, देयर इज़ अ डिक्रीज बट विद रिस्पेक्ट टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इट इज़ गॉट अ हायर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अब वो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डोपेंट इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है, बेसिकली वो इस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि इनिशियली आपकी डोपेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, आपका इक्विलिब्रियम सेग्रीगेशन कोएफिशिएंट क्या था, कि आपके जो लिक्विड और स्ट्रक्चर लिक्विड और जो आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिक्विड और उसमें आपका लिक्विड और लिक्विड और सॉलिड के जो सेग्रीगेट करने के जो कोएफिशिएंट था वो जो इस रेशियो पे डिपेंड करता है वो क्या था. एंड थर्डली कि आपके जो जितना वेट आपने ग्रो किया है और जितना वेट आपके पास पीछे एक्चुअली था, मतलब टोटल वेट, और जो इस चीज़ की रेशियो पे भी डिपेंड करता है कि जो टोटल वेट था आपका वो, और वो जो आपका रह गया था पीछे. ठीक है, ये उस पिक्चर की वो डायग्राम है जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस की थी कि हमारे पास सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन के अंदर कुछ ऑक्सीजन इंक्लूडेड होती है. ठीक है, और ये बात हमने की थी कि जो डिवाइसेस हमारी फैब्रिकेट होती हैं वो एक बहुत ही नैरो रीजन पे होती हैं, डैट इज़ एट द सरफेस. ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टैकिंग नीचे बल्क में स्टैकिंग फॉल्ट्स भी होते हैं, और जो ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जो कि एक्चुअली दे एक्ट एज अ ट्रैपिंग लेवल. They act as a trapping level for these things. ठीक है, ऑक्सीजन इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जो कि जो कि एक्ट करती हैं एज अ ट्रैपिंग लेवल for different impurities. That can be sodium ions or that can be any of the ions. ठीक,